Hello everyone, I am Sweta. Once again welcome back to my channel. Today I am going to teach you 9th class chapter number 2, Is Matter Around Us Pure? We have studied in previous chapter about matter, and we also study about the classification of matter. We classified matter into two groups on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. On the basis of physical properties, matter is divided into three groups: solid, liquid and gas. And on the basis of chemical properties, matter is divided into mixture, compound and element. We also study about the properties of solid, liquid and gas. In this chapter, we study about chemical properties, classification of matter on the basis of chemical properties. And first of all, we understand what is pure and what is mixture. According to common person, pure means having no adulteration. And according to chemistry, pure substance means a substance made up of only one types of particles that are identical to one another. Let's start this chapter and we understand these things in detail. Do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spice, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Have you ever noticed the word pure written on the pack of this consumable? For a common person, pure means having no adulteration. But for scientists, all these things are actually mixture of different substances. अब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग लाते हैं मार्केट से, तो उसके डब्बे में लिखा होता है प्योर है, तो हमारे लिए वो प्योर होता है अगर उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन हो, नहीं हो, मीन्स कोई भी मिलावट नहीं हो, तो वो हमारे लिए प्योर है. बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ प्योर तभी हो सकता है जब उसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं हो. फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क लें, for example, milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. When scientists say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क लें, फ्रेश मिल्क लें, डेयरी से लाया हुआ मिल्क लें, तो वो हमारे लिए प्योर है क्योंकि उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है. बट अगर साइंटिफिक व्यू से उसको देखा जाए तो वो मिक्सचर है वाटर, फैट और प्रोटीन का, तो वो मिक्सचर है, प्योर नहीं है. वह जब भी साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सेम केमिकल नेचर के हो. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक कॉपर ब्रिक, अगर हम कॉपर का कोई ब्रिक लें तो उसके जितने भी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल होंगे, वो सभी क्या होंगे, कॉपर ही होंगे. केमिकल नेचर उस सभी पार्टिकल्स की सेम होगी, तो वो साइंस के अकॉर्डिंग प्योर है. A pure substance consists of single types of particle. In other words, substance is pure, single form of matter. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure compounds. For example, sea, water, mineral, soil, etc. all are mixture. जितने भी substance हम surrounding में देखते हैं, जितने भी matter देखते हैं, maximum जो है वो mixture ही है. Now, what is mixture? In this way, we can say that matter is classified into two parts. The first part is pure substance and the next part is mixture. Okay, now we study about what is mixture. Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. मिक्सचर किससे बना होता है? एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से बना होता है, जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं. आगे जाके एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस? The answer is
The answer is pure form of matter known as substance. Okay? सब्सटेंस जो होते हैं वो मैटर के प्योर फॉर्म होते हैं. अ सब्सटेंस कैन बी नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से दूसरे मैटर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस में आ जाता है आप एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, या फिर मैग्नेट से जो सेपरेशन करते हैं, या फिर डिस्टिलेशन. ये सारे प्रोसेस से हम सब्सटेंस को ब्रेक नहीं कर सकते हैं. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. For example, अगर हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दें. अब ये सॉल्ट जो होती है उसकी फार्मूला होती है NaCl. जो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने घरों में सॉल्ट, वो होता है NaCl. इसको अगर हम वाटर में मिक्स कर दें और मिक्सचर बना दें नमक और वाटर का, तो हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस में इवोपरेट कर देते हैं वाटर को और NaCl हमें अलग मिल जाता है. तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. बट अगर NaCl को हम ब्रेक करना चाहें Na और Cl में, तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिज़िकल प्रोसेस. जो NaCl है इसको हम फिज़िकल प्रोसेस से Na और Cl में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ये NaCl क्या हो गया? ये सब्सटेंस हो गया. Similarly, sugar is a substance because it contain only one kinds of pure matter and its composition is the same throughout. अब sugar क्या है? एक substance है क्योंकि उसको हम break नहीं कर सकते हैं और उसका composition throughout same रहता है. Soft drink and soil are not single substance. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristics, properties. Therefore, we can say that mixture contain more than one substance. अब जो ये मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल सॉइल में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे ड्राई लीव्स हो गया या फिर डेड इंसेक्ट हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया. तो इन सब चीज़ों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. तो सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है. ओके, सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक इज ऑल्सो मिक्सचर. Substance present in mixture is called component and constituent of mixture. For example, if we take sugar and water mixture, the water and sugar is called component of mixture. इन दोनों को क्या बोलेंगे? इसका component बोलेंगे. ओके, और जो ये कंपोनेंट हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं. ये एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट भी नहीं करते हैं. और मिक्सचर में ये जो कंपोनेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर और वाटर का मिक्सचर लें तो वो स्वीट भी लगेगा और उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा. तो ये अपनी प्रॉपर्टी मिक्सचर में नहीं छोड़ते हैं. और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, वो है कि मिक्सचर की कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है. मिक्सचर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. अब जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर्स के, उसके नेचर के बेस पे मिक्सचर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं. Study about what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture and what is difference between them. First of all, we know about the examples of both mixtures. All solution like sugar solution, salt solution, copper sulfate solution come under होमोजीनियस मिक्सचर्स. अब इस सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, जिसको इसके जो कंपोनेंट हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से.
और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, इसके जो कंपोनेंट हैं वो कम्प्लीटली मिक्स्ड नहीं होते हैं एक दूसरे से, वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर्स में. फॉर एग्जांपल sugar and sand mixtures, chalk in water mixtures, etc. अब ये जो हैं, ये इनके पॉइंट्स हम वन बाय वन पढ़ते हैं. सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर इन होमोजीनियस एंड सब्सटेंसेस आर नॉट कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. इसके जो सब्सटेंस हैं वो कम्प्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं होमोजीनियस में, लेकिन जो हेट्रोजीनियस है उसके सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं. इट इज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. अब इनका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो उस को अगर हम टेस्ट करें तो वो हर जगह से इक्वली स्वीटनेस दिखाएगा. बट हेट्रोजीनियस सोल्यूशन में ऐसा नहीं है, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है. देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट. अब जब डिज़ोल्व हो गया, कम्प्लीटली डिज़ोल्व शुगर वाटर में हो गया, तो वो दिखाई नहीं देते हैं. शुगर के पार्टिकल्स हमें अलग से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसमें विजिबिलिटी बाउंड्री नहीं होती है, सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है. लेकिन जो हेट्रोजीनियस है, मैंने बताया था जैसे चॉक एंड वाटर का मिक्सचर है, तो इसमें चॉक के पार्टिकल हमें नज़र आएंगे, तो इसलिए इसमें विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. ये हमें नज़र आते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग हमें नज़र आते हैं कि यहाँ चॉक पार्टिकल्स है, यहाँ वाटर पार्टिकल्स है. ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स. वी नो जितने भी सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे जो उसके कंपोनेंट है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. ऑल सस्पेंसन एंड कोलॉइड आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर कोलॉइड फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. एक्टिविटी 2.1 में जो भी है मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ. एक क्लास को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है. ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप. अब ए ग्रुप को 50 ml वाटर दिया गया और बी ग्रुप को भी 50 ml वाटर दिया गया, और ए ग्रुप को 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट दिया गया और बी ग्रुप को 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट दिया गया. सी ग्रुप को कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और सॉल्ट, मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सॉल्ट उसके बदले में दे दिया गया डिफरेंट अमाउंट में. और डी ग्रुप को भी डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सचर दे दिया गया. अब यहाँ पे जो ए और बी ग्रुप है, ये यहाँ कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है कम्प्लीटली, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाएगा. बट बी ग्रुप का जो कलर है वो ए ग्रुप से ज़्यादा डार्क दिखेगा. क्यों? क्योंकि जो बी ग्रुप है उसकी इंटेंसिटी जो है ए ग्रुप से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट ज़्यादा है. इसमें 2 स्पेचुला डाले थे कॉपर सल्फेट, इसमें 1 डाले थे, इसलिए इसका कलर जो बी ग्रुप का होगा वो ज़्यादा डार्क ब्लू होगा. जब कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो ब्लू कलर की सॉल्यूशन बनाती है. कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में और ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, तो इसकी इंटेंसिटी अधिक होगी बी की और ए की कम होगी. मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर में भी वेरिएबल करता है उनका इंटेंसिटी. यूनिफॉर्म तो कंपोजिशन है बट उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है. अब सी और जो डी है इसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट को रखा गया है. और डी ग्रुप में भी वही किया गया कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट को रखा गया, जो कि आपस में मिक्सड नहीं होते हैं कम्प्लीटली. तो ये क्या बनाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके, सी और डी जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है. बस यही है इस एक्टिविटी में. Activity 2.2 we will study in next video. If I sum up all the things which we have studied in this chapter,
That is, matter is divided into two parts on the basis of chemical property, pure and mixture. And mixture is further divided into two parts, homogeneous and heterogeneous. We have solved these two questions also. In next video, we will study about different types of solution and what is solution. Very soon I will upload my next video. If you like my video, please respond it. Take care, stay safe and healthy. Bye.